issues nowadays, isn't it? All the time we have network issues. So let me answer the question. Last question I'm answering. So be there, Natul, with me, and don't talk or make disturbances. So let the other students write, and you also check your answer. So how to insert table column in a table? I think the process is given in your book also. So let me see whether we can answer it from there. Yes, inserting columns in a table. Question in page number 27. Yes, last part in page number 27. That is the first portion, inserting columns and rows in a table. So first of all, what we have to do? We have to select the column. Write down, students, those who are not written. The 27. Yes, it may be longer, so I'll be dictating it in small form. Select the column beside which you want to insert the column. Select the column beside which you want to insert the column. सुधांशु राज, हाथ नीचे करो, अभी लिखो. Yeah, written. Select the column beside which you insert the new column. Then right click on the column. Right click on the column and select insert column left or insert column right. So once again, I'm repeating. Select the column you want to insert the column beside it. Then right click on the column and select column, insert column at left or insert column at right. हो गया सबका? Hopefully. Yes, someone raised the hand. Who's that? कोई हाथ उठाया था? क्यों उठाया था भाई? राजवीर. कौन हाथ उठाया था? Yes, Sudhanshu. Yes, Sudhanshu. Sir, your voice is cutting. भाई क्या करे? The problem is with the network. I cannot help out anyway, isn't it? Your Yes, voice sir. is also the same. Yes, Shaurya. Shaurya. Sir, एक बार फिर से रिपीट करिएगा. कौन वाला? सर एक बार फिर से रिपीट करिएगा क्वेश्चन नंबर 7. आजा क्वेश्चन नंबर 7 फिर से रिपीट कर दे. ओके. नाउ वॉइस कटिंग था ना इसलिए. हाँ समझ रहे हैं बट अब समझ रहे हैं. Now those who had failed to write, I'm repeating the answer once again. Select the column. उससे अच्छा हम लिख ही देते हैं. रुको, लेट मी शेयर द स्क्रीन. हम लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? लिख देते हैं. रुक जा बेटा, रुक जा थोड़ा देर. I want to get the page. Yes, I got it. Now, let me write the answer. Those who had not failed to write the answer yet. Question number 7. कहाँ चल गया? लगा ही नहीं बोर्ड लगा. हाँ लगा. Question number 7. So step 1, you can write it like this. Step 1, select the column to insert
new column beside it. Pen का refill खत्म. Just a second. Let me bring up refill for the pen. Box. अरे ये बॉक्स तो नहीं है। Hello, Pechi. Yeah. It is just below me and I am looking around. Just a second. Okay? Let me change the refill. Let me change the refill. The second stage is step 2. Step 2. Step 2. Now what is the step? First step. Now right click on the selected column and select insert column at left or insert column at right. Yeah, that's all. Those who had failed to copy from the dictation, you can write the steps from here. Okay, then. Now, as we had already completed 2 chapters, 2 chapter khatam ho gaya. Ananya. Yes, Ananya. Sir, what you have written after at? After at. No, which sir, one? up. Sir, upper. This one. This one. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. At left. At left. Okay, Shaurya sir. kya? Okay. Shaurya. Yes, Shaurya. सर आप लेफ्ट के बाद क्या लिखे हैं? और ये और यस सागर. आंसर इतना ही है. हाँ बस इतना ही है, काफी है. ठीक है सागर. सर स्टेप 2 तक ही है ना? हाँ बस. सर आप राइट क्लिक के बाद क्या लिखे हैं सर? हे सर, भगवान. राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड कॉलम. हम बोलते भी जा रहे हैं. राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड कॉलम एंड सिलेक्ट इंसर्ट कॉलम एट लेफ्ट और
insert column at right. Yes, Nitul? सर आप लेफ्ट के बाद ऑन लिखे या और? or, not on, or. अब मेरा हैंड राइटिंग ऐसे ही है तो क्या करें? or, or. Okay, so we had completed 2 chapters. If anybody have any doubt in these 2 chapters. Yes, Surya. सर कुछ नहीं सर, गलती कुछ से नहीं? मैं Okay, no problem. Okay, no problem. So we had already completed 2 chapters. Do anybody have any doubt in these 2 chapters? दोनों चैप्टर में किसी को कोई डाउट है? तुम लोग पूछ सकते हो. आज हम लोग और कुछ नहीं करेंगे. अगला क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एंड दैट मे बी द लास्ट चैप्टर इन योर फर्स्ट टर्म सिलेबस, एंड आई डोंट नो व्हाट इज द सिलेबस आल्सो, सो वी हैव टू चेक आउट. तो करते जाएंगे एक के बाद एक, है ना? सो होपफुली दिस विल बी द वन मोर चैप्टर विल बी देयर. सो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो 2-4 सवाल जवाब हो जाए. ओरल टेस्ट. Are you ready for the oral test? हम किसी से भी पूछेंगे सवाल. You have the book with you, I know, but you still you cannot cheat. क्योंकि मेरा सवाल ऐसे ही होगा कुछ जो किताब में होगा, तो मगर कहाँ होगा मिलेगा नहीं. So those who had read the book, only they can answer. So are you ready? No one, I know. No one is ready for that. So I give you time. On the next day, I'll ask you a question. Anyone I can ask. Okay, anyone. I'll ask you to answer the question. Anyone. So only chapter number 1 from chapter 1. Okay. So next day, get prepared with the question answers and read the chapter, not only the question answers. That will not be enough. So question answer पूछेंगे. Yes, Nitul? सर only from chapter 1. Only from chapter 1. Okay. Then it yes. Surya? Yes, Surya? सर ऑब्जेक्टिव पूछेंगे क्या? कुछ भी. Anything from chapter 1, okay? Anything from chapter 1. Okay. Now, Ananya. Sir, Sorry? written test. No, Sir, man. you will take it. No. I'll ask a question. Then I may ask anyone in the class to answer that. Okay. So when you take written test, that will be done later, because written test is quite difficult, isn't it? Because we cannot be able to see who is copying and who is not. So written test, that needs a time limitation. So it is not very easy to conduct online. okay. We will better conduct some oral tests, and any doubt you have regarding, because as you go through the book, go through the content of the book, you will get some doubts. So I will obviously clear those doubts along with them. Okay. Two people are waiting outside. Let them come in and we will take the attendance. Then let 2 persons waiting out comes in and we will take the attendance. So this is 6B. Six B, attendance. First is Akriti Hemram.
Let me. Akriti Hemram, Ananya Singh. Then we have Arnav Gupta. Then we have Aryan Raj and Bandana Valotia. Then Chahat Kumar. Then we have Isha Raj. Then we have Hemin and Kumari Pragya Anand. Then Kumari Sakshi, MD Anshul Haq, then Nitul Raj. हाँ आ रहा है नितुल, आपका हो गया. Then comes नितुल राज के बाद है रजनीश राज. Yes, Rajneesh Raj. Then we have Rajveer Modi. Then we have Rakesh Kumar, Sagar. उसके बाद है सक्षम. उसके बाद है शिवम. And then Shaurya and Shreyansh Singh, Sudhanshu Raj, Tejas Kumar Jha और तानिया सिन्हा. सबका नाम पुकार लिए. ठीक, चेक करना है क्या कितने का अटेंडेंस हुआ, सही से हुआ कि नहीं हुआ. एक बार चेक भी कर लेते हैं. 6B कहाँ चल गया. 6B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Yes, exactly same. So yeah, किसी को कोई डाउट है? सॉरी तुमको कुछ डाउट था? सॉरी नहीं था. ओके, you don't have any doubt. So before we close down, let us just for a revision कुछ समझ लेते हैं. किससे पूछेंगे? नितुल से ही पूछेंगे. नितुल, say the types of computer. Yes. Say the types of computer. What, sir? Types of computer. Sir, mini computers, super computers, mainframe computers, laptop computers, tablet computers. But इतना सारा थोड़ी है. Micro computer. You miss that. Micro computer, mini computer, mainframe computer, super computer. 4 है. Micro computer. हाँ, तो लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर, पीडीए कंप्यूटर ये सब तो नहीं होगा नितुल, ये सब नहीं होगा ना. Now, once I'm repeating, that's why I asked you, okay? Because many of you may be confused. कि टाइप्स पूछेंगे तो क्या क्या बताना है. 4 टाइप है. माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर. बस ये 4 है. माइक्रो कंप्यूटर के अंदर में आता है, माइक्रो कंप्यूटर में है डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, पीडीएस, मोबाइल फोन्स, एटसेट्रा, गेमिंग कंसोल. ये सब हो गया माइक्रो कंप्यूटर में. माइक्रो कंप्यूटर में एक और कंप्यूटर भी होता है जिसको बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर. पढ़े थे ना एम्बेडेड कंप्यूटर.
हाँ, एम्बेडेड सिस्टम्स। तो एम्बेडेड सिस्टम्स थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम्स में कंप्यूटर भी होता है, मगर वो सिर्फ कंप्यूटर नहीं होता है, किसी दूसरे चीज में लगा होता है। कंप्यूटर तो है मगर किसी दूसरे डिवाइस में लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल योर टीवी, तुम्हारे टीवी में कंप्यूटर लगा हुआ है ना? तो दैट वी कैन से माइक्रो कंप्यूटर, सॉरी एम्बेडेड सिस्टम, वो हो गया एम्बेडेड सिस्टम। तो माइक्रो कंप्यूटर्स में अलग अलग है, लैपटॉप, पीसीज, डेस्कटॉप्स, मोबाइल फोन, स्मार्ट डिवाइसेस, पीडीएस, गेमिंग कंसोल्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर इज द कंप्यूटर विच इज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज। ये सारे कंपनीज यूज करते हैं। किस लिए? बहुत सारे लोगों को काम करना होता है एक साथ में, एक समय पे, एक जगह पे, तो वो लोग यूज करता है मिनी कंप्यूटर्स। क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर उतना सारा डेटा हैंडलिंग नहीं कर सकता है, उतना सारा यूजर्स को हैंडल नहीं कर सकता है, इसलिए वो लोग यूज करता है मिनी कंप्यूटर्स। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े कंपनी यूज करते हैं, and they are mostly used nowadays. We are, all of us are using the internet services, and we are using the Class Plus Lite, and we are using, although Class Plus Lite doesn't need a computer at all, Zoom हम लोग यूज कर रहे हैं। तो Zoom क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग Zoom के सर्वर के साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जो जूम जब यूज कर रहे हैं तो सारा क्या हो रहा है, जूम के सर्वर के थ्रू आ रहा है, जूम का कंप्यूटर के थ्रू आ रहा है, तो उसको तो ढेर सारा डेटा हैंडल करना पड़ रहा है। क्योंकि सिर्फ अपना ही स्कूल नहीं, इंडिया में अभी जितने भी स्कूल से सब स्कूल एक साथ में शायद क्लास ले रहा होगा, क्योंकि सभी स्कूल का टाइमिंग तो वही मॉर्निंग में ही है, इवनिंग में तो कोई स्कूल चलाता नहीं था। तो सारा स्कूल्स इंडिया का, सिर्फ इंडिया का ही अगर हम लोग समझ लेते हैं तो इंडिया में ही 100 करोड़ में से कम से कम 15 करोड़ बच्चा तो अभी देख रहा होगा, क्लासेस कर रहा होगा। 15 करोड़ में से कुछ टीचर्स भी होंगे, वो लोग भी क्लासेस ले रहे हैं। तो बहुत सारे डेटा समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा कंप्यूटर चाहिए, तो वो जो है वो हो गया मिनी कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर, अब सुपर कंप्यूटर का यूज इतना कॉस्टली है कि बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी इसको रख नहीं सकता, इसको खरीद नहीं सकता, चला नहीं सकता, और इसके लिए गवर्नमेंट का परमिशन का भी जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए क्या है, सुपर कंप्यूटर्स हर कंट्री में है भी नहीं। सबसे बड़ी बात है, सुपर कंप्यूटर हर कंट्री में है भी नहीं। पाकिस्तान में शायद सुपर कंप्यूटर है ही नहीं, बांग्लादेश में नहीं है। तो सुपर कंप्यूटर का काम क्या है, ये एक्चुअली साइंटिफिक रिसर्च में काम आता है। दे कैन परफॉर्म ह्यूज कैलकुलेशंस इन सेकेंड्स। बड़े बड़े कैलकुलेशन, बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा डेटा हैंडलिंग और बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर होता है, जिसके चलते क्या होता है कि सुपर कंप्यूटर साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज होता है। जिसमें से एक सबसे आसान जो है हम लोग समझ सकते हैं, वो है वेदर फोरकास्टिंग। ना वेदर फोरकास्टिंग में होता क्या है, कैसे वेदर फोरकास्ट होता है? एक्चुअली वेदर फोरकास्ट होने के लिए क्या है, अर्थ सरफेस से ऊपर सैटेलाइट्स है, हम लोग को पता है। अर्थ के ऊपर कुछ 450 किलोमीटर से 800 किलोमीटर के दूरी में ढेर सारे सैटेलाइट्स घूम रहा है, अर्थ का चक्कर लगा रहा है। तो ये सारे सैटेलाइट्स क्या करता है, हर सेकंड अर्थ सरफेस का पिक्चर लेते रहता है। तो वो पिक्चर में क्या होता है कि क्लाउड्स भी दिखता है, वेदर फोरकास्टिंग। हाँ, तो क्लाउड्स का मूवमेंट भी दिखता है और रियल टाइम में दिखता है। सबसे बड़ी बात है कि वो रियल टाइम में दिखता है। रियल टाइम में मतलब क्या, अभी ले रहा है, अभी तुरंत अर्थ का सेंटर पे वो, मतलब जो कमांड सेंटर है या जो रिसर्च सेंटर है, वहां पे क्या करता है, तुरंत वो पिक्चर भेज देता है विद अ डिले ऑफ 20 सेकंड, कुछ 20 सेकंड का डिले होता है। तो मोटा मोटे हम लोग समझ सकते हैं कि रियल टाइम में वो क्लाउड्स का मूवमेंट देख रहा है, किस स्पीड से किस डायरेक्शन में क्लाउड मूव कर रहा है, कहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये सारा चीज वो पिक्चर
कैप्चर करता है, और कैप्चर करके क्या करता है, अर्थ सरफेस पे कंट्रोल सेंटर पे भेजते रहता है, और कंट्रोल सेंटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है तुरंत, एकदम साथ साथ। जैसे पिक्चर मिला तुरंत उसको जांचना शुरू की, कोऑर्डिनेट का क्या कितना मूवमेंट हुआ, क्लाउड कितना डिग्री किस एंगल में कितना फास्ट मूव कर रहा है, तो उस हिसाब से क्या करता है, एक वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। साथ ही साथ दे नीड्स द टेम्परेचर ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस ऑल्सो। जमुई में बारिश होगी कि नहीं कैसे पता चलेगा, क्लाउड्स तो दिख गया, मगर क्लाउड्स तो किसी भी मोमेंट पे किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है ना। मगर साथ ही साथ क्या किया जाता है, जमुई का टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया जाता है, ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड मूवमेंट, एयर मूवमेंट, विजिबिलिटी, ये बहुत कुछ मिला करके तब जा करके एक परफेक्ट वेदर फोरकास्टिंग किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, ह्यूज कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, ह्यूज प्रोसेस कैपेसिटी चाहिए। दैट्स व्हाई द सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। नाउ फ्यू ऑफ मी यू सुपर कंप्यूटर का थोड़ा सा यूज आगे बढ़ाते हैं, साइंटिफिक में कैसे होता है। ये तो वेदर फोरकास्टिंग हो गया। few of you may had heard about LHC। LHC नाम सुना है? नहीं, जो नाम सुना हाथ उठाओ तो। नो सर, नहीं सुना, कोई नहीं सुना। फुल फॉर्म इज लार्ज नो सर। हाइड्रोन कोलाइडर। लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर ये नाम है। वो एक मशीन है, 17 किलोमीटर लंबा मशीन है। 17 किलोमीटर लंबा मशीन है जो अर्थ सरफेस के नीचे 3 किलोमीटर नीचे दबा हुआ है। सर इतना बड़ा मशीन क्या करता होगा, क्यों बनाया होगा साइंटिस्ट, और इतना नीचे रखने की क्या जरूरत है? यस, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडेड। लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर से एक्चुअली क्या किया जाता है, 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉम्स पढ़ रहे हो अभी केमिस्ट्री में, है ना? पढ़ रहे हो ना नितुल? यू म्यूटेड योरसेल्फ। एटॉम्स पढ़ रहे हैं सर No, फिजिक्स, atom- सर इन फिजिक्स आल्सो। यस, इन फिजिक्स आल्सो इज देयर। इन फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। तो एलिमेंट्स को हम लोग डिवाइड करते चल जाएंगे तो सबसे छोटा इंडिपेंडेंट पार्टिकल क्या है? एटॉम। एटॉम को भी डिवाइड किया जा सकता है। अगर एटॉम को डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर से मिलता है 3 और छोटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन को भी डिवाइड किया जा सकता है। अरे बाबा रे, इतना तो हम लोग जानते नहीं है। एग्जैक्टली हम लोग नहीं जानते, तुम लोग नहीं जानते, मगर मैं तो जानता हूँ, मैं तो पढ़ा हुआ हूँ। तो न्यूट्रॉन को भी डिवाइड किया जा सकता है, और न्यूट्रॉन में से निकलता है पॉजिट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन में से निकलता है 3। सर अब न्यूट्रिनो को भी डिवाइड सर किया जा सकता है। कोलाइडर का स्पेलिंग सर? COLLAIDER, कोलाइडर, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर। तो वो उसका अभी जरूरत नहीं है, वो पढ़ोगे बाद में। तो ये एक्चुअली क्या किया है, वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एटॉम के अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में है, उसको क्या करता है, निकालता है। निकाल के 2 ऐसे पार्टिकल को क्या करता है, हाई स्पीड, इन द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के में उसको एक दूसरे से टकराया जाता है। जब टकराता है तो उसमें विस्फोट होता है। एटॉमिक बॉम्ब हम लोग समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना? एटॉमिक बॉम्ब वैसे ही बनता है, एटॉम को फोड़ा जाता है। तो एटॉमिक बॉम्ब की तरह उसको कोलाइड किया जाता है। कोलाइड जब करता है तब क्या होता है, उसमें से ढेर सारे रेज, पार्टिकल्स एंड अदर थिंग्स निकलता है। सर क्या जरूरत है इतना मेहनत करने का? जरूरत है। इससे हम लोग समझ सकते हैं हाउ आवर यूनिवर्स इज क्रिएटेड। हम लोग का यूनिवर्स बना कैसे, उस एक्सपेरिमेंट के जरिए पता चलता है। तो इसीलिए जरूरत पड़ता है।
अब उसमें तो ढेर सारा डेटा, ढेर सारे इंफॉर्मेशन, ढेर सारे कंट्रोल्स होंगे, तो वो सारे को कंट्रोल करने के लिए जरूरत पड़ता है साइंटिफिक मशीन या एक बड़ा सा कंप्यूटर, जिसको हम लोग सुपर कंप्यूटर बोल सकते हैं. There is lot of advancement in science. As you grow up, you will come to know about them. हम तो एक बस इतना सा बताए एक चीज. There is very interesting subjects, science, physics and all. Very interesting. If you concentrate, if you take interest, you can be able to learn a lot of things. Now, along with that, चलो भाई फिजिक्स और साइंस तो समझ गए, मगर कंप्यूटर तो जरूरी है. सबसे जरूरी क्या है? कंप्यूटर. कैलकुलेशन कहाँ करोगे बिना कंप्यूटर का? तो बिना कंप्यूटर का तो बाबू आजकल कुछ भी नहीं होता है. यहाँ तक भी एक्सरे भी कराने जाओ तो भी कंप्यूटर. उसके बाद अल्ट्रासाउंड कंप्यूटर का यूज होता है. देन नौकरी कहीं सिंपल करने जाओ तो नौकरी तो छोड़ो ना, सिंपल बिना कंप्यूटर के कैसे करोगे? कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए ना. तो यू कैन अंडरस्टैंड अराउंड अस एवरीवेयर. अगर टीवी भी चला रहे हैं तो उसमें भी कंप्यूटर लगा हुआ है, तो बिना कंप्यूटर का तो कुछ होगा नहीं. So you can understand, you need to understand the computer better, isn't it? And you need to memorize them. Now, most of the time, most of the people, most of you things, और फर्स्ट टर्म में पढ़ लिया, सेकंड टर्म में काम नहीं आएगा, isn't it? अगर यही चीज एलकेजी में करते, जब अल्फाबेट सिखाया गया था, तो आज सेंटेंस बना पाता, लेटर लिख पाता, ऐसे लिख पाता, पैराग्राफ लिख पाता. उतना तो छोड़ो, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाता, है ना. तो जरूरी है, पढ़ाई कुछ भी बेकार नहीं है, सारे रिलेटेड है. तो कंप्यूटर जो तुम लोग आज सीख रहे हो, ये जरूरी नहीं कि क्लास 7 में काम नहीं आएगा, क्लास 7 में भी काम आएगा. नाउ वी हैव ओनली 3 minutes लेफ्ट. ओके, सो डू स्टडी वेल, गो थ्रू द बुक. इफ यू हैव एनी डाउट एनीवेयर, इतनी सी भी डाउट हो, शर्म आता है, हम समझते हैं कि पूछेंगे लोग हंसेगा. अरे नहीं बाबा, तुमको पता नहीं है, बाकी सबको थोड़ी पता है, बाकी सबको भी पता नहीं है. सब क्या होता है, चुप के बैठा रहता है. पूछेंगे तो हंसेगा दूसरा. नहीं, डोंट डू दैट. इफ यू डू दैट, कि नहीं पता है. हाँ, इफ यू डू दैट, you will not be able to learn, you will not be able to understand, isn't it? So if you have a simple doubt, itni si bhi doubt hai, you clear it out, and I am always here. Sir, what is yeah, sir meaning of intersection, sir? intersection means where they cuts each other. See, you can see the hole, isn't it? Say this is the row, this is the column. Now what is the hole created? Due to the intersection of 4 lines. The intersection मतलब एक दूसरे को काटना. Okay. Okay, sir. Okay. So that's all for today. Hopefully you had enjoyed the class, and see you in the next class. Okay. That's all. Have a nice day.